Tell me, what is the meaning of marketing? Who is going to tell me about it? What is the meaning of marketing? Raise your hand. Yes, Sandeep. Sit down. Marketing is all about satisfaction of demand and needs, wants. Half correct. Good. Next. So it consists all those, it's not consist all those activities which is required for the for satisfaction of the needs. All type of activities, either that is transportation, warehousing, trading, marketing, all the four P's, it relies in marketing, right? सारी चीजें marketing में utilize होती है. Sit down. Okay. Tell me, what are the importance of the marketing? Online class and offline class. Raise your hand. What is the importance of marketing? Be ready for that. Whatever topic we discuss, I'll give you a question on that. What are the types of consumer goods? What are the various types of consumer goods? Raise your hand. Online class and offline class. What are the types of consumer goods? Yes. Tell me the names. Close the notebook. Convenience product. Yes. Huh? Specialty. Next. Unshout product. ठीक है, चलिए sit down. Who is going to tell me what is the meaning of convenience goods or convenience products? क्या होते हैं? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Online class and offline class. To tell me about the convenience product. Raise your hand. If you want to say, raise your hand. चलिए बताइए convenience product क्या है? I'm not able to hear you. Please थोड़ा सा तेज बोलिए. एक मिनट. Close your notebook. Colgate, salt, all these things known as the convenience product. Okay. Anyone else? Good. संदीप चलिए बताइए. Day to day life. Life and that product price is very cheap, shipping slow, and that product easily available. That product. That's नहीं, that product. That product are easily available or little stock. हाँ, the intensive distribution FMCG companies are adopted. That's why we easily able to purchase. That is easily accessible. यानी कि हम उसको आराम से purchase कर सकते हैं क्योंकि intensive distribution है. Large number of area को और large number of stores को उन्होंने cover कर रखा है. ठीक है. चलिए next point. Pre-planned नहीं होता है. ठीक है. Okay, sit down. Industrial product, what is convenience product? We already discussed. In the industrial product, there are three types of products. The first one is material and parts. Second one is capital goods, and third one is supplies, right? So there are three types of products in the industrial product. Now in the consumer products, there are four types of products: convenience products, shopping products, specialty or luxurious product, and unshout products. What? हाँ, UNSOUGH. Unshout products क्या होता है? Ask some other students about it. Okay, right. Packaging. Packaging के बारे में लिखिए. That is the part of product. Now, what is the meaning of packaging? See, we already discussed in the product decision what kind of topics we have to study. The first one is what is the meaning of product, which we already discussed. What are the various type of products, which we already discussed.
Today we are going to complete packaging and labeling. Then we'll do branding. And after that, we'll move toward new topic that is PLC, product life cycle. ठीक है? So before that, what is the meaning of packaging? अच्छा, पैकेट से आप क्या समझते हो? पैकेट क्या होता है? What is packet? Thing which covered the main products, right? जैसे कि अगर हम एक लेस का पैकेट लेते हैं, लेस का एक पैकेट, उसमें जितना भी क्वांटिटी है वो उसको क्या रखा है, उसने कंसिस्ट कर रखा है, होल्ड कर रखा है, दैट इज पैकेट, राइट? सो पैकेजिंग इज द प्रोसेस, पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द मेन प्रोडक्ट and there are some strategies for that. What is those strategy? First of all, what packaging से होता क्या है? पहली चीज तो आपका प्रोडक्ट प्रोटेक्ट रहेगा, रहेगा कि नहीं? प्रोडक्ट प्रोटेक्ट रहेगा, इजी टू कैरी होगा, यानी कन्वीनियंस होगा आपके लिए. जस्ट इमेजिन, कुछ पैकेट्स जो होते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के पैकेट्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही बनकर आते हैं. मतलब कि जैसे बिस्किट के पैकेट्स हैं, वो ऑलरेडी बन करके पैकेट बाय पैकेट सप्लाई होते हैं रिटेलर तक. तो सम पैकेट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी बन करके आते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, और रिटेलर उसको सेल करता है कंज्यूमर को, राइट? बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आपके ग्रेन में, जैसे आपका हो गया राइस, व्हीट, ये सारे बहुत बड़े बड़े साइज में, एक बोल सकते हैं सैक में पैक होकर आते हैं, लेकिन हमें क्वांटिटी कितना लेना होता है? 5 kg 10 kg. तो समटाइम टेम्पररी पैकेजिंग में आपको रिटेलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं. जैसे 1 kg आटा लेना है, अब आटा आशीर्वाद आटा लोगे तो वो पैकेट में आएगा 5 kg का, बट खुला वाला आटा लोगे तो दे विल पैक इट इन द पॉली बैग एंड देन दे विल प्रोवाइड यू. ऐसा तो नहीं होता है ना कि 1 kg अगर हमने आटा लिया तो वो हमें ऐसे देता है हाथ में ऐसे निकाल कर. तो वी आर नॉट एबल टू कैरी इट थ्रू. तो पैकेजिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके प्रोडक्ट को, मेन प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करेगा. सेकेंड है कि वो आपके प्रोडक्ट को इजी टू कैरी करेगा, मतलब कि आप इजीली उसको कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे. ट्रांसफरेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग. जैसे मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहा है, एग्जैक्टली एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, या फिर ट्रांसफर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? पैकेजिंग को यूज करेंगे हम प्रॉपर्ली, उसको पैक करके ट्रांसफर करेंगे ताकि प्रोडक्ट आपका डैमेज ना हो, है ना? नेक्स्ट क्या होगा कि जो लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्पिल ना हो जाए, स्पिल मतलब गिर ना जाए, इसके लिए भी पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट. फॉर ब्यूटीफुल लुक, यानी कि प्रोडक्ट का लुक के लिए, अट्रैक्शन के लिए भी पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट. आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो इतने ब्यूटीफुली पैक्ड होते हैं कि हमें उसको प्रोडक्ट को लेने का रीजन पैकेजिंग नजर आता है, पैकेट नजर आता है ना? जैसे आप लोग देखते होंगे कि आजकल बहुत सारी लोग स्किन क्राफ्ट सुन रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में सुन रहे हो. स्किन क्राफ्ट प्रोडक्ट जो आजकल कस्टमाइज्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रहा है, जिसका फेसबुक में हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं. डू यू नो हाउ दे आर बेसिकली ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट? They are using a very beautiful small box to packaging all those items. So basically packaging is also a way of attracting the customer, persuading the customer. आ रही बात समझ में? तो पैकेजिंग का क्या रोल है, समझ में आया? इट इज, अगर हम पैकेजिंग को डिफाइन करें तो इट इज अ वे, इट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिजाइनिंग द कंटेनर. डिजाइनिंग द कंटेनर, कंटेनर क्या होता है आपका? जिसमें प्रोडक्ट कंटेन है, ठीक है? कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग? क्लियर हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग? तो लिख लीजिए एक लाइन में, पैकेजिंग, packaging is a strategy, packaging is a strategy which consists various activities, which consist various activities, which consist various activities of designing and producing the container, designing or producing the container or wrapper of a product, or wrapper of a product, wrapper of a product. तो पैकेजिंग क्या है? आई गेस सबको समझ आ गया होगा. कोई भी कंटेनर जिसमें प्रोडक्ट कंसिस्ट होता है,
हाँ रैप्ड होता है, कवर्ड होता है, होल्ड करता है प्रोडक्ट को, ठीक है। तो दैट इज पैकेजिंग। वो सारे प्रोसेस जो एक मार्केट में होता है, मार्केटिंग कंपनी जो है वो सारे प्रोसेस करती है, किस तरीके का डिजाइन करे, कैसे प्रोडक्ट को होल्ड करवाए। अभी आपने देखा होगा जैसे जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट है ना, उनके लिए टेट्रा पैकेजिंग यूज होता है। टेट्रा सुना है क्या होता है? एक्चुअल में दैट इज अ हार्ड कार्डबोर्ड की पैकेजिंग होती है, जिसके अंदर में एल्यूमिनियम फॉइल लगा होता है, ठीक है, ताकि अगर वो गलती से भी वो पैकेट, अगर उसको नॉर्मल पैकेट में लिक्विड को रखेंगे तो हो सकता है कि वो डैमेज हो, बट टेट्रा पैकेजिंग जो है वो लिक्विड तो विदाउट शेप होता है, पता ही है। तो बस टेट्रा पैकेजिंग उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता है, ठीक है। तो देखिएगा जूस के जो पैकेट्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा इसके, हाँ आपने ट्रॉपिकाना देखा होगा, है ना, रियल जूस देखा होगा, उनके देखें पैकेजिंग कैसे होते हैं, तो दैट इज टेट्रा पैकेजिंग। तो पैकेजिंग किस तरीके से प्रोडक्ट का करना है वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसे फॉर क्लोथ्स वी आर यूजिंग अ नॉर्मल कार्डबोर्ड और प्लास्टिक रैपर्स, राइट, बिकॉज क्लोथ इज समथिंग विच कैन नॉट बी स्पिल्ड, स्पिल नहीं होगा, फिसलेगा नहीं, गिर भी गया तो टूटेगा नहीं, ट्रू। तो जिस तरीके का प्रोडक्ट होगा, जैसे फ्रेजाइल प्रोडक्ट है जो गिरते के साथ टूट सकता है, जैसे कांच के प्रोडक्ट, ग्लास के मटेरियल्स, तो फ्रेजाइल प्रोडक्ट के लिए हम ज्यादा प्रोटेक्टिव पैकेजिंग करेंगे ताकि वो इजिली सेल किया जा सके, डैमेज कम हो, है ना, लॉस कम हो कंपनी को। तो कई बार पैकेजिंग जो है इट टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी आर सेलिंग। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया सबको? क्लियर? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है बेटा? एवरीवन? यस मैम। चलिए, तो पैकेजिंग जो है वो तीन उसका टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशियरी, ठीक है। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, टेरिशियरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पैकेजिंग फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। पैकेट जो प्रोडक्ट को होल्ड करता है, पैकेजिंग एक प्रोसेस है जो कंपनी अडॉप्ट करती है कि प्रोडक्ट के लिए पैकेट किस तरीके का डिजाइन करे। आई बस समझ में? पैकेट इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट। लेज का वो पैकेट है, हम ये थोड़ी बोलते हैं मार्केट में जाके पैकेजिंग दीजिए, नो। पैकेजिंग इज द स्ट्रैटेजी जिसमें सारे एक्टिविटीज आते हैं जो एक कंपनी डिसाइड करता है कि हमें प्रोडक्ट को कैसे पैकेट्स बनाना है, उसके कंटेनर को कैसे डिजाइन करना है ना, कितना इजी टू यूज है, ये सारी स्ट्रैटेजी जो बनते हैं उसको हम कहते हैं पैकेजिंग, ठीक है। वो एक प्रोसेस है एंड पैकेट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट जिसमें हम प्रोडक्ट को कंटेन करते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए, तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ पैकेजिंग जो है, फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट मेड इजियर सिंबल प्रिंटिंग। सिंबल प्रिंटिंग इज पॉसिबल इन पैकेजिंग, ऑन पैकेजिंग। सिंबल प्रिंटिंग इज पॉसिबल ऑन पैकेजिंग। Symbol printing, symbol SYMBOL, symbol printing is easier on packaging, easier on packaging, easier on packaging, easier on packaging. हाँ, PRINTING, printing is easier on packaging. Just see, आप लोग एक चीज देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल में आपने नाइकी का शूज लिया, उसका डब्बा है, डब्बा किस चीज का है, कार्डबोर्ड का है, और उसके डब्बे पे आप नोटिस करिएगा इस तरीके से साइन होता है, लास्ट बेंच कीप क्वाइट, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल होता है। सिंबल किसका होता है? नाइकी का ये सिंबल है, एक ट्रेडमार्क है, लोगो है ना। तो पैकेजिंग की वजह से इट इज पॉसिबल टू प्रिंट सिंबल ऑन दैट पैकेट। पैकेजिंग की वजह से वी आर इजिली रिकॉग्नाइज थ्रू पैकेट कि दिस प्रोडक्ट बिलोंग टू दिस ब्रांड। आई बात समझ में? तो पैकेजिंग की वजह से क्या पॉसिबल हो रहा है, हम सिंबल को इजिली प्रिंट कर सकते हैं। ट्रू, इट इज इजियर फॉर द कंपनी टू प्रिंट सिंबल एंड समहाउ दे आर आल्सो प्रिंटिंग सिंबल ऑन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे भी कई बार सिंबल बना होता है, लेकिन पैकेट के ऊपर सिंबल से हमें पता लग जाएगा कि ये भाई इसी कंपनी का प्रोडक्ट है ना। तो इजी ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड आइडेंटिफाई करना इजी होता है थ्रू पैकेजिंग। क्लियर हो गई बात? अब वो अलग बात है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डब्बा नाइकी का होगा, अंदर प्रोडक्ट किसी और का हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम सेइंग अबाउट इन द नॉर्मल टर्म। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अब एक और भी चीज है, थ्रू पैकेजिंग वी आर इजिली आइडेंटिफाई ना कि विच प्रोडक्ट वी वांट। फॉर एग्जांपल, इफ वी
went to the market, अगर हम गए मार्केट में किसी में, will go to the market, ठीक है, हम लोग गए, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि किसी को लाइफ बॉय लेना है, तो भाई लाइफ बॉय देखकर पता लग जाएगा ना, उसका पैकेजिंग के स्टाइल से पता लग जाएगा कि ये लाइफ बॉय है, नाम भी लिखा होता है, सिंबल भी बना होता है, कलर कॉम्बिनेशन, so that is possible because of the packaging. We are not going to open one by one, हर एक प्रोडक्ट ओपन करके थोड़ी देखेंगे कि कौन सा लाइफ बॉय है, नो, what we will understand, we'll understand it through the packaging, पैकेट के थ्रू हमें पता लग जाएगा, क्लियर? नेक्स्ट वन, it printed on the package guidelines on the package, guidelines are printed on the package या packet, guidelines are printed for how to use that product, for how to use product. In short we can say description, about the product. अब ये चीज सबसे ज्यादा कब यूज आता है, when we are purchasing some kind of product which we never purchased earlier. एग्जाम्पल के लिए, if we purchase MTR mix सबने सुना है, जो इंस्टेंट खाना बना सकते हैं, इडली का मिक्स आता है, गुलाब जामुन का मिक्स आता है ना, ये सब का मिक्स आता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं और बहुत इंस्टेंट बनता है. अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपरली नॉलेज चाहिए कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे बनाएं या कैसे यूज करें. So those guidelines and description in written form is on packet. किस चीज में होता है, पैकेट में होता है, प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं लिखेगा, प्रोडक्ट में लिखना पॉसिबल ही नहीं है गुड्स में. So that whole description about the product is written on the package or packet. आगे बस समझ में क्लियर हो गया. तो फर्स्ट वन इज फॉर द ब्रांड आइडेंटिफिकेशन और फॉर द बोल सकते हैं ब्रांड फॉर प्रिंटिंग द सिंबल. The packets are important, right? And second one is for holding the description and the guidelines of the product, how to use product, ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करें, all the details of the product that is mentioned on the packet. क्लियर हो गया सेकेंड पॉइंट भी. थर्ड वन, ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next one is, ma'am. Next one is, yes. So next one is, again, what happened? Okay. Next, third point. Third one is, third क्या है? The introduction of packaging in the marketing. The introduction of packaging in the marketing system has helped storing. The introduction of packaging in the marketing system has helped storing of the product, प्रोडक्ट को स्टोर करना भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है पैकेजिंग का, मैंने वर्बली तो बताया ही है. has helped storing of the product. यानी पैकेजिंग क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा. और रिटेलर जो है वो कन्वीनियंटली क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है पैकेज्ड गुड को इन लेस स्पेस. यानी कि जो भी प्रोडक्ट को अगर आप पैकेट में कर लीजिएगा तो ऐसी सिचुएशन में वो लेस स्पेस लेगा, कम जगह लेगा. एक तरीके से एडवांटेज वही, फंक्शन क्या क्या करता है, काम क्या क्या करता है, यही काम करता है, प्रोडक्ट को होल्ड करना, ये सब ठीक है. और इसके बाद ये कन्वीनियंस इसलिए क्योंकि ये एक ही जगह पे होल्ड हो जाएगा, मतलब आपका बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, ठीक है. तो यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस प्रॉपर्ली इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग, राइट. नेक्स्ट वन इज, और दैट इज ऑल्सो इजी फॉर स्टोरिंग. आप नोटिस कीजिए, क्या हो, जस्ट वेट फॉर अ सेक. हाँ,
एक मिनट, एकदम शांत रहो, एकदम शांत। Okay, everyone, you all are able to hear me? Yes, ma'am. Okay, just okay. So clear हो गया? पैकेजिंग के थ्रू प्रोडक्ट को स्टोर करना भी इजी है ना? स्टोर करना भी इजी है। हम लोग इजिली कैटेगराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल इफ द पल्सेस पैकेट्स आर देयर, ठीक है, इफ द बोल सकते हैं एफएमसीजी गुड्स पैकेट्स आर देयर, वी कैन कैटेगराइज इट इजिली थ्रू द पैकेजिंग, है ना? एक जगह पे ये प्रोडक्ट रख दिया, एक जगह पे ये रख दिया, इजिली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं प्रोडक्ट को। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखिए, next one is the fourth function of packaging. Packaging of products ensure protection of goods from heat, light, goods from heat, heat, garam, heat, light, moisture evaporation, ठीक है, etc. So what we understand through this, कि ये प्रोटेक्ट करता है पैकेजिंग किसको, प्रोडक्ट को, गर्मी से, ठीक है, मॉइस्चर से। मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, कई सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। लाइट से भी हो जाता है, लाइट से आपका प्रोडक्ट में रिएक्शन हो सकता है जो प्रोडक्ट को हार्मफुल बना सकता है ना? तो हाँ बिल्कुल, इंसेक्ट वगैरह से भी प्रोटेक्ट कर सकता है, स्पिल से प्रोडक्ट प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रोडक्ट गिरे ना, बहे ना, जो लिक्विड आइटम्स होते हैं। तो इन शॉर्ट वी अंडरस्टैंड कि पैकेजिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज अच्छा, एक और चीज कि जो आपके इटेबल आइटम्स होते हैं, जैसे जो चीज खाने वाले आइटम्स होते हैं, उनके लिए पैकेजिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको हमें क्या करना है, कंज्यूम करना है, खाना है उन्हें। तो इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ दूस प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट का डैमेज होगा, तो दैट इज गोइंग टू गिव लॉस टू द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज रिटेलर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? चलिए, एक बच्चा गेट लगाना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पैकेजिंग रेंडर मतलब प्रोवाइड करता है, पैकेजिंग रेंडर्स very useful service such as sales promotion. Packaging renders very useful service such as sales promotion. अच्छा, सेल्स प्रमोशन से मतलब क्या समझता है, कोई बताएगा मुझे? जैसे कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना, ऑफर देना, एक पे एक फ्री हो गया, आजकल तो वो भी मिलता है कि 50 रुपीज कैशबैक। तो पैकेजिंग के ऊपर ही आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये पैकेट है, अभी जैसे मैं अभी बिंगो का लेज लेकर आई, तो उसमें लिखा हुआ था कि यू विल गेट द 2 GB डेटा, तो लाइक ये दैट इज मेंशन ऑन द पैकेट, सो दे आर ऑल्सो होल्डिंग द सेल्स प्रमोशन इन इनिशिएटिव। जो भी टेक्निक है उसको भी कौन होल्ड कर रहा है, आपके पैकेट्स होल्ड कर रहे हैं। अभी आपने जैसे देखा होगा, पेप्सी के बॉटल में भी कई बार लिखता है कि 1 GB डेटा, डायल दिस नंबर। सो वी कैन ऑल्सो यूजिंग द पैकेजिंग फॉर द सेल्स प्रमोशन टेक्निक। कई बार उसमें लिखा होता है 10% एक्स्ट्रा, ठीक है, जैसे ये पैकेट बना हुआ है और इसमें ऊपर में ऐसे करके लिखा है 10% एक्स्ट्रा, ठीक है। और आज तो ये भी क्या है, आपका सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। सो पैकेजिंग इज ऑल्सो होल्ड द सेल्स प्रमोशन टेक्निक, है ना? दैट इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहां तक? 4th 5th पॉइंट हो गया आई गेस। हाँ, नेक्स्ट लिखिए पैकेजिंग हेल्प
पैकेजिंग हेल्प कस्टमर्स to differentiate the product. To differentiate the product. Packaging helps customer to differentiate the product. Differentiate the product. अच्छा, एग्जाम्पल के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. अब हम जब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ कि बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना. जैसे अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स ले तो लाइक कोको कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, माजा, मल्टीपल काइंड ऑफ ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स आर अवेलेबल. So through packaging, for example, so many customers are knowledgeable. जो कस्टमर knowledgeable हैं वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. मुझे माजा लेना है, अच्छा ये येलो वाला बॉटल है इसमें. और कुछ लोग कलर और पैकेट के हिसाब से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं. खास करके रूरल एरियाज में ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है, इसीलिए वहां पर कई बार ब्लैक मार्केटिंग एंड स्प्यूरियस प्रोडक्ट का भी सेल बढ़ जाता है. कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बस बता रही हूँ. स्प्यूरियस प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ओरिजिनल प्रोडक्ट ये है, फेक ये है. समझ रहे हो? ओरिजिनल डुप्लीकेट का हाँ, पहचान. ओरिजिनल बिल्कुल. उसका जो कलर कॉम्बिनेशन, पैकेजिंग का स्टाइल, सब कुछ सेम लगेगा आपको, लेकिन हाँ एकदम लिखा हुआ भी सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं है. उसका क्वालिटी जो अलग होगा. क्वालिटी का और एक पीछे एक आपका बार नंबर और एक ग्राफ होता है, वो चीज मेंशन, हाँ कोडिंग मेंशन नहीं होता है, ठीक है. लेकिन इतना डीपली वही इंसान समझ सकता है जो नॉलेजेबल हो या जो एजुकेटेड हो ज्यादा. तो यहाँ पर जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है. हमें कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट लेना है, ये ए प्रोडक्ट लेना है, तो हम बी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं पैकेजिंग के थ्रू. आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग वी आर एबल टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट. वी कैन चूज द प्रॉपर प्रोडक्ट थ्रू पैकेजिंग. क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन. लेकिन यही पैकेजिंग भी, नॉर्मली पैकेजिंग इज फॉर डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर ब्रांड, योर प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर ब्रांड. तो आई थिंक ये वाला भी पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको, एवरीवन. चलिए नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन, packaging done in a strong and efficient manner, done in a strong and efficient manner is helping foreign, efficient manner is helping foreign transportation is helping foreign transportation of the products without taking considerable hazard during transit. During transit. TRANSIT. Transit यानी ट्रांसफर करना. Without taking considerable hazard during transit. Okay, what is the meaning of that? फॉरेन, हमें जो भी पैकेजिंग करना चाहिए वो इतना स्ट्रांगली और इफिशिएंटली करना है, और इवन होता भी इसलिए इन द सिचुएशन व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट टू द फॉरेन कंट्री. फॉरेन कंट्री में जब हमें कोई प्रोडक्ट को भेजना है तो उसके लिए भी पैकेजिंग इज हेल्पफुल, बिकॉज दैट इज स्ट्रांगली पैक द प्रोडक्ट, स्ट्रांगली प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट. बिकॉज फॉरेन जगह पे जा रहा है तो समझ रहे हो कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है, कितने जगह पे उसका बिलिंग होगा, कितने जगह पे वो उतरेगा वो प्रोडक्ट, डॉक यार्ड पे. एग्जैक्टली. तो मल्टीपल प्लेसेस पर आपके प्रोडक्ट का यूज है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर पैकेजिंग बहुत ही हम लोग वीक करेंगे तो द प्रोडक्ट कैन बी डैमेज, राइट. तो ये एक सिचुएशन है कि इन फॉरेन ट्रांसपोर्टेशन वी रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्गर पैकेजिंग. ओके, क्लियर हो गया आई गेस? इतने सारे फंक्शन सारे समझ में आ गए? यहाँ तक कोई डाउट? हैजार्ड मतलब जो चीज आपका बोल सकते हैं ना कि जिस चीज से आपको नुकसान हो. हैजार्डस आपके क्या प्रिकॉशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हैजार्ड क्या हो सकता है, आग लगना, दैट इज अ हैजार्ड. ठीक है, कोई डिजीज, दैट इज अ हैजार्ड. जो चीज से आपको लॉस हो, जो चीज आपको इफेक्ट करे एडवर्सली. ठीक है, तो हैजार्डस
सिचुएशन से आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा प्रोडक्ट को? पैकेजिंग। हाँ, चलिए, एनीवन हैव एनी डाउट व्हाटएवर वी डिस्कस? जस्ट इमेजिन कि फॉर एग्जाम्पल ये बच्ची जो है शी विल गो टू द ज्वेलरी शॉप गई and what she purchased one necklace. For example, she purchased necklace for 2 lakh rupees. So the price of the good is very high. Okay. So now when she purchased that, she made the payment. उसके बाद क्या हुआ? What happened? कि they gave her a very big box and very heavy box. उसमें उसने ज्वेलरी को यानी नेकलेस को डाल के दे दिया. Do you think that is a characteristic of good packaging? Because maybe she purchased a very expensive product, but still she can't able to carry it because it is very heavy. So always remember, जो प्रोडक्ट होगा, हाँ कुछ ऐसे आपके हेवी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, कैपिटल गुड्स प्रोडक्ट हो गया, जैसे मशीनरीज हो गया, तो दैट उसका नेचर ही हेवी होता है, तो वो एक अलग सिचुएशन है. लेकिन कोई भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपको बहुत एक्सट्रीम हेवी नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अगर आपने हेवी पैकेजिंग कर दिया तो उस प्रोडक्ट को कैरी करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा. तो गुड पैकेजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि इट्स टू हेवी. उसका मतलब होता है कि लाइट वेट में प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले प्रोडक्ट को. आई बात समझ में? यानी कि उस नेकलेस के लिए स्मॉल केस ऑफ बॉक्स इज ओके. स्मॉल केस ऑफ बॉक्स काफी है, लेकिन स्टिल दे गिव अ वेरी बिग बॉक्स. Obviously we cannot able to carry it like this, right? And उसके बाद वो इतना unsafe होगा क्योंकि you cannot put it in your bag. You have to carry it like this, right? So in that situation we can say that packaging should never be so heavy. लिख लीजिए, packaging should never be so heavy. कभी भी heavy packaging नहीं होना चाहिए. ठीक है? पैकेजिंग शुड नेवर बी हेवी. गुड कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन अच्छा तरीका है पैकेजिंग करने का. ठीक है, पैकेजिंग का तरीका क्या अच्छा है? ये पॉइंट है. पैकेजिंग शुड नेवर बी सो हेवी. इतना भी भारी नहीं होना चाहिए कि इट इज इनकन्वीनियंस टू कैरी द प्रोडक्ट. इनकन्वीनियंस हो जाए आपको प्रोडक्ट कैरी करना, है ना? मोबाइल फोन लेते हैं, कितना बड़ा बॉक्स में पैक्ड होता है? आई थिंक उतना ही बड़ा जितना बड़ा मोबाइल होता है. हार्डली उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एसेसरीज होता है, तो उसके लिए उसका बॉक्स का साइज थोड़ा सा डेप्थ जो होता है उसका ज्यादा होता है. अदरवाइज ज्यादा इतना बड़ा तो नहीं, बड़े में तो नहीं होता मोबाइल फोन. नो, इतना छोटा सा फोन के लिए इतना बड़ा बॉक्स की जरूरत नहीं है. इसीलिए द सेम थिंग इज अप्लाइड इन दिस कि द बॉक्स और द पैकेजिंग शुड नेवर बी हेवी एंड इट नॉट बी एज सच. मतलब मल्टीपल में देखे तो प्रोडक्ट से एक्सट्रीम बड़ा पैकेजिंग नहीं होना चाहिए. क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, बेटर डिजाइन्ड. बेटर डिजाइन्ड, बेटर डिजाइन यानी जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए? प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए कि उसको इजिली आप ओपन कर सको और यूज कर सको प्रोडक्ट को. ठीक है, सो प्रॉपरली डिजाइन्ड. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन इज, बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग. स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग, स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट. स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग, या फिर कह सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट लिख सकते हो. सिक्योरिटी ब्रैकेट में लिख लीजिए, सिक्योरिटी. लिख लिया? इजीली अडेप्टेबल. इजीली अडेप्टेबल, easily adaptable, easily adaptable. easily adaptable का मतलब है कि वो प्रोडक्ट को हम इजिली परचेज भी कर सके और इजिली उसको स्टोर भी कर सके. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट को हम जहां रखे वो इजिली वहां पर आ जाए. जैसे अलमीरा में प्रोडक्ट रखना तो अलमीरा में वो आराम से चला जाए प्रोडक्ट. रेफ्रिजरेटर में रखना है खाने पीने की चीज तो इजिली वो चला जाए रेफ्रिजरेटर में. हाई बात समझ में? तो इजिली अडेप्टेबल हो, वो उस एरिया को इजिली अडेप्ट करे. जैसे रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं वहां पर आराम से वो आ जाए प्रोडक्ट. ठीक है, तो इजिली अडेप्टेबल. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, स्टेटस. स्टेटस, स्टेटस
जो प्रोडक्ट होता है कई बार उसकी जो पैकेजिंग होती है वो ब्यूटीफुल इसलिए डिजाइन किया जाता है बिकॉज वो प्रोडक्ट को जो कैरी कर रहा है, पहली चीज तो एक्सपेंसिव भी हो सकता है, और सेकेंड चीज होता है वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, और उसके पैकेजिंग के थ्रू वी कैन एनालाइज दैट द प्रोडक्ट इज ऑफ बेटर ब्रांड एंड द क्वालिटी. तो पैकेजिंग कैन ऑल्सो शो दैट. क्लियर होगी बात? तो नेक्स्ट वन में आया स्टेटस. स्टेटस ये प्रोडक्ट में एक एडिशनल बोल सकते हैं वैल्यू को ऐड करता है. आपका पैकेजिंग प्रोडक्ट के वैल्यू में ऐड करता है. जैसे ज्वेलरी बॉक्सेस का डिजाइन देखो कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड होता है ना. कॉस्मेटिक्स आइटम देखो उसके लिए स्मॉल स्मॉल पैकेट्स आजकल बन रहे हैं, यू कैन इजिली कैरी इट, है ना. तो दिस इज शोइंग द स्टेटस ऑफ द ब्रांड. पैकेजिंग इज गोइंग टू शो द स्टेटस, और उस प्रोडक्ट को कैरी करने के बाद लगे कि यस यू आर परचेजिंग द ब्रांडेड एंड द वैल्यूएबल प्रोडक्ट. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? नेक्स्ट लिखिए एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग. तो आई गेस सबको समझ में आ ही गया होगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग. ठीक है, वही होगा कि ब्रांडिंग कर सकते हैं इजीली, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. प्रोडक्ट कई बार कुछ पैकेजिंग ऐसे भी होते हैं जिसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, ये भी होता है ना. पैकेज को रीयूज करते हो कि नहीं, है ना. तो ये सारी चीजें हो गई. क्वांटिटी, क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन के लिए भी पैकेजिंग जरूरी है, लोगों को के लिए पैकेजिंग जरूरी है, सिक्योरिटी के लिए पैकेजिंग जरूरी है. तो ये सारे इसके एडवांटेज हो गए. चलिए एग्जैक्टली एवरी नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, कहाँ बना है, कब बना है, तो इसको हम लेबलिंग भी कहते हैं. खैर लेबलिंग पे भी हम बढ़ेंगे आगे. अच्छा, व्हाट आर द थ्री टाइप ऑफ पैकेजिंग. पैकेजिंग कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के पैकेजिंग होते हैं. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशियरी. So when we are talking the primary packaging का मतलब क्या होता है? जिसने मेन प्रोडक्ट को होल्ड कर रखा है. तक बात समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है कि प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है? जो अल्टीमेट प्रोडक्ट को यानी प्रोडक्ट को कैरी करता है. जैसे एक टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो टूथपेस्ट ट्यूब जो है दैट इज अ प्राइमरी पैकेजिंग बिकॉज इट इज होल्डिंग द फाइनल गुड. जो फाइनल गुड्स है आपका, यानी जो टूथपेस्ट है, पेस्ट जो है वो उस ट्यूब में है, तो दैट ट्यूब इज द प्राइमरी पैकेजिंग. क्लियर? हाँ, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? और जब उसके ऊपर में कार्डबोर्ड का जो बॉक्स बना हुआ है जो उस ट्यूब को कैरी कर रहा है, यानी प्राइमरी पैकेजिंग को जो पैकेट कैरी कर रहा है दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग. उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पैकेजिंग. और जो आपका बेसिकली हाँ वो जो बंडल्स बने हुए हैं आपके किसके? पैकेट्स के. सेकेंडरी पैकेजिंग के जो बंडल्स बने हुए, मान लो 2020 के पैकेट्स बने हुए हैं, दैट कम्स अंडर द टेरिशियरी पैकेजिंग. अब टेरिशियरी पैकेजिंग में वो बंडल्स, मल्टीपल बंडल्स ऑफ पैकेजिंग वो भी आ गया, और जो बड़े बड़े कार्डबोर्ड या करेगेटेड बॉक्स जो यूज करते हैं, ठीक है, जो कार्डबोर्ड यूज करते हैं वो भी आपके टेरिशियरी पैकेजिंग में आता है. बिल्कुल, कार्टून्स वाले. क्लियर हो गया सबको? एवरीवन, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर द 3 टाइप लेवल्स ऑफ पैकेजिंग? किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक व्हाटएवर वी डिस्कस्ड? पैकेजिंग में किसी को भी किसी भी पॉइंट में डाउट है? रेज योर क्वेश्चन. मैम ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक बार फिर. बेटा प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है जिसमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट है. मैंने आज लिखवाया नहीं है, इसको लिखवाऊंगी. प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है जिसके अंदर अल्टीमेटली प्रोडक्ट कंटेन्ड है. जैसे एक टूथपेस्ट जो हो गया, टूथपेस्ट जो है दैट इज, पेस्ट किसके अंदर होता है? ट्यूब के अंदर होता है. तो दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग जिसमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट कंटेन है. ठीक है, उस ट्यूब को जब हम एक बॉक्स में देखते हैं, या तो कई बार वो प्लास्टिक में भी आता है वो ट्यूब, तो वो होता है आपका सेकेंडरी पैकेजिंग जिसने प्राइमरी पैकेट को होल्ड कर रखा है. ठीक है, और जो बंडल्स या बॉक्सेस और बड़े बड़े प्लास्टिक जिसने उस सेकेंडरी पैकेट को होल्ड कर रखा है, एक पैकेट को नहीं, मल्टीपल सेकेंडरी पैकेट को, एक साथ 20-25 का पूरा बंडल आता है टूथपेस्ट का, आता है ना, तो उसको बोलते हैं टेरिशियरी पैकेजिंग. आई बात समझ में वैष्णवी? यस मैम. ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट?